جس نے کل نظام مصطفیٰ کے نعرے دیے وہی آج بجرنگ بلی کے نعرے دیتے ہیں. وہی امام, وہی مولوی اسٹیجوں پر کھڑے ہوتے ہیں. وہی جو کے ٹکڑے کس نے کیے 47 میں, اسی چوک میں ہوئے, اسی چوک میں. یہی سی گھنٹہ گھر اندلو نہیں تھا یہاں. میں کیوں ڈروں؟ بتائیں کیوں ڈروں؟ آپ سیدھا نشانہ نہیں ساتھ بی جے پی والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. یہاں پہ جو بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے تم منتنشدی وہ سارے ذمہ دار ہے. اور تب سے لے کر جو چین آف سیاستدان ہے, جو آج کے بھی سیاستدان ہیں, یہ ذمہ دار ہے کشمیر کی تباہی, کشمیر کی بربادی, کشمیر. آپ ہمیشہ گھما کے بات کرتے ہیں, آپ سیدھا ڈائریکٹ نشانہ کسی پہ نہیں ساتھتے. کیا آپ ڈرتے ہیں سیاستدانوں سے؟ ارے کیا بات ہے, یہ ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہیں. مجھے بتائیں جب پی ڈی پی نہیں بنی تھی, میں 90 آخرکار کیا چاہتا ہے؟ کیا کشمیر میں امن ہے؟ کیا کشمیر کے لوگ خوش ہیں؟ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں فارمر ایڈمنسٹریشن میں رہ کر جنہوں نے بہت اچھا کام کیا اور باقاعدہ طور پر لوگوں کا ساتھ دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت اگر دیکھیں تو صوفیزم پہ بات کرتے ہیں اور مختلف چیزوں پہ بات کریں. فاروق رنجو صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. صاف طور پر گھنٹہ گھر اتہاسک جگہ کے پاس اس وقت ہم موجود ہیں. مناسب سمجھا کہ ان سے بات کی جائے اور سمجھا جائے کہ آخرکار کشمیر کیا چاہتا ہے. فاروق صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ لکھتے بہت خاص ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں. کشمیر کا باقاعدہ طور پر جو نظام چلا ہے اس پہ لکھتے ہیں. آپ سے چاہیں گے سیدھا سوال, پہلا سوال ہوگا کشمیر کیا چاہتا ہے؟ کشمیری لوگ کیا چاہتے ہیں آج؟ کشمیر وہی چاہتا ہے جو وہ پچھلے 4000 سال چاہتا تھا اور جو پچھلے 700 سال چاہتا تھا. میں نے انڈر سکور کر رہا ہوں, 4000 سال کی بھی ہماری تاریخ ہے اور 700 سال جب حضرت بلبل شاہ تشریف لے آئے تب سے جو کشمیر چاہتا ہے وہ آج بھی وہی چاہتا ہے کہ کشمیر کا نام ساری دنیا میں, سارے ورلڈ میں ایک نالج کا شہر, سویلائزیشن کا شہر. اور یہ جو یہاں آپ نے مجھے یہاں پہ بالکل ملاقات جہاں میں آپ سے کر رہا ہوں, تاریخی جگہ ہے. اس تاریخی جگہ میں بھی یاد کرو کشمیر کو 1947 میں اس وقت بھی کشمیر کہتا ہے کہ میں امن کا گواہ رہا ہوں. اس نے کبھی وائلنس کا ساتھ نہیں دیا اور نہ کبھی کشمیر وائلنس کا ساتھ دے گا. کروانے والے کون تھے کشمیر میں؟ کشمیر کے وائلنس کرنے والے بڑا ٹیڈیس سوال ہے. آپ کو پتا ہے جاوید صاحب میں سیاست میں نہیں ہوں, دیکھا ہے آپ نے, اس سے گزرے ہیں. میں نے دیکھا ہے, گزرا ہے, اور کشمیریوں کو پتا ہے کہ یہاں کشمیر کے ٹکڑے کس نے کیے 47 میں, اسی چوک میں ہوئے, اسی چوک میں. یہی سی گھنٹہ گھر اندلو نہیں تھا یہاں, گھنٹہ گھر اب تو آ گیا ہے, لیکن اسی چوک میں جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کشمیر کے ٹکڑے کریں گے, ادھر ہی روکیں گے, اوری میں ہی رکیں گے, ادھر گلگت کو پھینکا, بلتستان کو پھینکا, ادھر جو ہمارے سویلائزیشن کا ایک حصہ ہے کھنجری پاس سنا ہوگا. اور یہاں کے اگر آپ کوٹا رانی کی ہسٹری دیکھیں گے, لاسٹ ریشی کوئین آف کشمیر, تو تب سے آپ دیکھیں گے کہ ہماری یہ جو سویلائزیشن کا یہ ہے, یہ تب سے ہمارا اپنی جگہ مقدم ہے. آج ہسٹری کے بارے میں بات نہیں کریں گے, آج کشمیریت کی بات کریں گے. آج کشمیر کیا چاہتا ہے؟ آج کشمیر کس طریقے سے بنا ہے؟ کشمیر چاہتا ہے کہ میرا جو مقام تھا سویلائزیشن میں ٹاپ مقام, ایجوکیشن میں ٹاپ مقام, نالج میں ٹاپ مقام, پیس اور امن میں ٹاپ مقام, اسپرچولیٹی میں ٹاپ مقام, اسپرچولیٹی یہاں سے نکلی, تو اس کو مجھے واپس دے دو. مجھے اپنا وہ سٹیٹس جو ہے, سٹیٹس آف نالج, سٹیٹس آف اسپرچولیٹی, سٹیٹس آف بردرہڈ, سٹیٹس آف پیس, وہ مجھے واپس چاہیے. خراب کس نے کیا ماحول؟ خراب کس نے کیا ماحول؟ سیاستدانوں نے. سیاستدان کنٹینیوٹی جو 1947 میں سیاستدان ہے, یہاں پہ جو بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے تم منتنشدی وہ سارے ذمہ دار ہے. اور تب سے لے کر جو چین آف سیاستدان ہے, جو آج کے بھی سیاستدان ہیں, یہ ذمہ دار ہے کشمیر کی تباہی, کشمیر کی بربادی, کشمیر کو ایک غلط امیج پیش کے صرف اپنے چند حقیر ووٹوں کے لیے.
हकीर वोटों के लिए इन्होंने ऐसे ब्लड शेड यहाँ किए, हजारों लाखों को मरवाया और गलत स्लोगन दिया, और वही जिसने स्लोगन दिया उसी ने स्लोगन को मारा। जिसने कल निजाम मुस्तफ़ा के नारे दिए वही आज बजरंगबली के नारे देते हैं, वही इमाम, वही मौलवी स्टेजों पर खड़े होते हैं, वही जो नौजवानों को भटकाते थे जिहाद के लिए, वही आज कहते हैं कि वो गलत थे, और वो मौलाना और उनको भी आजकल एनकरेजमेंट मिलती है। तो ऐसी चीज़ों को मेरे ख्याल में कश्मीर नो डाउट सब कुछ वाच कर रहा है, देख रहा है। ये लाल चौक खामोश नहीं है, ये लाल चौक दे रहा है। पहले इसका नाम भी गलत था, ये लाल चौक एक कम्युनिस्ट नाम है, क्योंकि कम्युनिज्म यहाँ लाया गया। यहाँ इंडियन आर्मी से पहले ही यहाँ पे जो यहाँ पे राइफल्स आई थी 303 आए थे, वो कहाँ से आए थे? इसी पैलेडियम के सामने है पैलेडियम, वो कहाँ से आए थे? वो आज वो वायलेंस किसने लाया? कुछ बाबाज ऐसे हैं जो आज के वक्त में कहते हैं लाल चौक का नाम बदल के राम चौक रखना चाहिए। नहीं, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बोथ रेडिकलिज्म इज रॉन्ग। अगर कोई मुसलमान रेडिकलिज्म के नाम पर कहेगा राम बाग का नाम चेंज करो, और राम बाग का नाम आप कोई इस्लामिक नाम रखो, इस्लामाबाद रखो आप राम बाग का नाम, या इस्लामिक ब्रिज रखो, तो अगर सदियों से इसका नाम राम बाग है तो रहने दो। लेकिन यहाँ ये दस्तगीर चौक था, यहाँ पे दस्तगीर साहब का आस्थान शरीफ है, वहाँ सराय बल में, तो या इसको नाम चेंज करके कोई ये स्लोगन दे दे भाई इसका नाम राम चौक रखो, तो मेरे ख्याल में वो भी हमारी तहजीब, आप हमेशा घुमा के बात करते हो, आप सीधा डायरेक्ट निशाना किसी पे नहीं साधते। क्या आप डरते हैं सियासतदानों से? अरे क्या बात है, अगर मैं उनसे डरता तो फिर मैं उनकी जोली में ज्वाइन करता। इतने ये थे, इतने बड़े बड़े ऑफर्स थे, लेकिन मैं हमेशा इसलिए डर वर के बगैर मैं बोल रहा हूँ। मैं क्यों डरूं? बताएं क्यों डरूं? तो आप सीधा निशाना नहीं साधते, बीजेपी वालों के साथ होते हैं आप। अगर मैं डरता, मैं उस वक्त डायरेक्टर इंफॉर्मेशन था, 9 मार्च 2012, डेट नोट करो। जहां पे हम खड़े हैं यहाँ से चंद मीटर्स दूर, वहां दस्तगीर साहब में, मैं दस्तगीर साहब में अपने पीर दस्तगीर साहब के मोई मुकद्दस को चूमा और लोगों को दिखा रहा था। मेरे सिर्फ इस एतकाद को ये क्यों दिखा रहा है, ये क्यों कर रहा है, मुझ पे गोलियों की बौछार हो गई। शुक्र है पीर पहले अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला एक है, पहले उसका, फिर पीर दस्तगीर साहब के उस चूमने का, मोई मुकद्दस का। यहाँ से गई गोलियां, मेरा पियोसो मारा उस वक्त, यहाँ से गई गोलियां और मैं बच गया। तो अगर मैं डरता, मैं क्यों वो मोई मुकद्दस वहां? आज क्यों खुल के नहीं बोल रहे? आज खुल के क्यों नहीं बोल रहे? खुल के बताओ क्यों मैं आज सियासतदान अगर गलत कर रहे हैं नाम लेकर क्यों? मैं उन तमाम सियासतदानों को बिल्कुल यहाँ पे एक इल्तिमास कर रहा हूँ कि अपने लिए कि हमें नौकरी वापस चाहिए, हमें अपनी कुर्सियों पर वापस बैठना है, हमें वही आपस में वो अपना MLA शिप दीजिए। हम पुराने मिनिस्टर ठीक थे, मैं उनसे कह रहा हूँ लोग ये नहीं चाहते हैं। लोग पहले आपसे सवाल कर रहे हैं एक एक को कि आपने जब इख्तिदार में आप थे, आपने क्या यह शराब आम नहीं कराई? शराब को यहाँ पे खुला नहीं छोड़ दिया आपने? क्यों छोड़ दिया? कश्मीर में मेरे बुलबुल साहब ने, मेरे शाह हमदान ने शराब पे बैन लगाई है, और आपने असेंबली में पास की बिल और यहाँ शराब छोड़ दिया, और यहाँ गांजा, चरस, औरतें यहाँ शराब पीती है क्योंकि लाइसेंस औरतों के पास भी दी उन सियासतदानों ने अपने वोटों के लिए, चंद वोटों के लिए कितने कश्मीरियों को मरवाया, कितने कश्मीरियों को एक चैम्बर में बंद किया, दूसरे चैम्बर में बंद किया। क्यों जब मफ यहाँ जीत रही थी उस वक्त क्यों उनको गिरफ्तार किया गया और उनको थानों में पीटा गया? क्यों नहीं बनने दिया? वो क्या उस वक्त तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही वो लड़ रहे थे। तो ये सियासत लोगों को बेवकूफ बना। ये एक ही थाली के चटे पटे हैं। मुझे बताएं, जब PDP नहीं बनी थी, अब मैं कितना चीजें आपको बताऊं, because you are a very renowned journalist, so I am talking to you in this historical लाल चौक।
यहाँ से गांव कदल कितना दूर है, थोड़ा सा। वहां पे गोलियां चलाने वाला कौन था? एसएचओ भी मुसलमान था, डीएसपी भी मुसलमान था, इंस्पेक्टर भी मुसलमान था, एसपी भी, एसएसपी भी मुसलमान था, आईजी भी मुसलमान था, डीजी भी मुसलमान था, और चीफ मिनिस्टर भी मुसलमान था, और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी मुसलमान था। कितने मारे यहाँ क्या नाम है लाल चौक में, यहाँ गांव कदल में? आप मुझे बताएं, उन्हीं लोगों ने जन्म लिया खून पर, सिर्फ इनको वोट हासिल करो, इन्हीं को मारा और इन्हीं से वोट लिए। क्या गर्जी है? खुद गर्जी नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रूएलिटी, यू कॉल इट ए क्रूअल नेचर ऑफ पॉलिटिक्स इन कश्मीर। आप एक दिन स्लोगन देते हो, अरे जनाब हम जो यहाँ पे जड़ा चढ़ाने नहीं देंगे, यहाँ इसी चौक में सारे पॉलिटिशियंस, सारे यही जो वोट करे, लाओ एक एक को खड़ा करो, नहीं कह रहे थे कि जड़ा चढ़ाने नहीं देंगे यही लोग? क्या इन्हीं पॉलिटिशियन ने नहीं कहा कि ये नाम है, ये कांधा देने वाला नहीं होगा? क्या वही पॉलिटिशियन आज 10-10 झंडे जाके के नहीं घूमते हैं? इसलिए क्योंकि उनको नौकरी अब वापस चाहिए। पहले लोगों को एक स्लोगन से बेवकूफ बनाया, अब दूसरे स्लोगन से बैन कर। लोग यहाँ कश्मीरी पीस लवर्स है, मोहब्बत वाले हैं, प्यार वाले हैं, और बेचारे समझते ये ट्रिक्स उनको समझ नहीं आती। 47 में हमसे सबसे बड़ी ट्रिक हुई, 1947 में इतनी बड़ी ट्रिक हुई भाई। हमारा वो नगमा वैली, हमारा हुंजा वैली, हम कोहिस्तान तक थे, हम नूरिस्तान तक थे, हम वो पामीर हिल्स तक थे। एक K2 हिमालय के बाद जो सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ है, K2 हमारा कश्मीर का था। हमारे वहाँ पे थे, इवन तिब्बत तक हमारे थे, तिब्बत हा था हमारा, तिब्बत हा। आप बड़शाह का देखो मैप, हम कहाँ तक थे, वो चाइना कहीं था ही नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा, वक्त का तकाजा है, अब क्या चाहते हैं कश्मीरी? क्या जमहूरियत निज़ाम जो बहाल होना चाहिए? देखिए एक बात है, व्हाट इज द जमहूरियत? क्या कश्मीर को रियली जमहूरियत मिली? वोट्स यहाँ पे जब इलेक्शन लड़ते थे बिला मुकाबला जीतते थे, बिला मुकाबला जो अपोजिशन में होता था उसको बाज़ाब्ता किडनैप करके मारा जाता था, उनको अपोजिशन में उठने नहीं देते थे। क्या वो डेमोक्रेसी है? क्या वो डेमोक्रेसी है कि जिसने जीता उसको डिक्लेयर किया इसने हारा? क्या वो डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कश्मीर में ओरिजिनलिटी से था। कश्मीर अगर डेमोक्रेट नहीं होते तो कश्मीरियों का डेमोक्रेटिक डिसीजन दे दो कि कश्मीरियों ने कभी वायलेंस का साथ नहीं दिया, कभी नहीं दिया, लेकिन पॉलिटिशियन ने हमेशा वायलेंस का साथ दिया। पॉलिटिशियनों ने ही दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज आई एम नॉट, आई हैव नेवर बीन, नेवर। आप जाइए तो I want those politicians to explain they are in politics for what? आप कश्मीर को क्या देना चाहते हैं? आप भी सियासत में हैं। ये अच्छा एक मार्क कहा, but I was never go and see the history. Go see the, I have not contested a single election from child. I was a bureaucrat. I was a bureaucrat. People miss because uneducated people don't understand the difference between the bureaucrat and the minister. उनको लगता है मिनिस्टर आता है जाता है, ब्यूरोक्रेट कंपटीशन में टॉप पोजीशन लेकर पास करता है और ब्यूरोक्रेट बनता है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है फारूक रिंजू शाह। मुसलसल इनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में हालात किस तरीके के हैं और आखिरकार जमहूरी निज़ाम इस वक्त जिस तरीके से चल रहा है, आने वाले वक्त में किस तरीके से जो है बाकायदा तौर पर निज़ाम चलेगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।